ہماری سیٹیں جیتی ہوئی سیٹوں کو ہروایا جانے لگا، آروز کے ذریعے نتیجے بدلے اور ہر چیز بالکل نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، ہر چیز اظہر من الشمس ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ پھر ڈاکے ڈالے گئے ری کاؤنٹنگ کے نام پر، الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا، وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا، ہم متوجہ کرتے رہے، ہم ہائی کورٹس گئے، ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے مینڈیٹ کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ اور آج بھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ پہ ڈاکہ ڈلائے تب بھی، اور اگر یوسیوں پہ ڈاکہ ڈلائے تب بھی، ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کراچی کے عوام کا حق سمجھتا ہوں۔ اس ڈاکے سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو، کراچی کا جینوئن مینڈیٹ رکھنے والا میئر بنے گا انشاءاللہ، جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، اور اس میئرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ مینڈیٹ لے کر آتے تو ہماری کسی کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ مرتضی وہاب سے لڑائی ہے، نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لڑائی ہے، نہ ان کی لیڈرشپ سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے۔ ہماری لڑائی اس نظام سے ہے، ہماری لڑائی ان کے کنڈکٹ سے ہے، ہماری لڑائی ان کی چوری سے ہے، ڈاکہ ڈالنے سے، الیکشن کمیشن کی قبضہ سیاست سے ہے کہ جو وہ مل کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ہماری لڑائی کراچی کے حق میں ہے، پاکستان کے حق میں ہے، صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں۔ اس لیے ہم یہ لڑائی لڑیں گے۔ آج اگر انہوں نے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے سمجھا ہے کہ اب جماعت اسلامی خاموش ہو جائے گی، اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی میئرشپ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی معراج ہے، آخری منزل ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میئرشپ تو ایک نشان منزل ہے، منزل تو ابھی ہماری دور ہے، تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست، لیکن انشاءاللہ وہ منزل قریب آتی چلی جائے گی ہماری جد و جہد کے نتیجے میں۔ انشاءاللہ ہمارے لوگ جد و جہد کو تیز تر کریں گے، ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں، پرامن عوامی احتجاج، اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل کالج ہے، ایک کونسل ہے، جس میں ممبرز کی تعداد کی بنیاد پر میئر اور ڈپٹی میئر کو بننا ہے، 192 ہمارے اور پی ٹی آئی کے، اور 173 پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے، 173 والا جیت جائے اور 31 انسانوں کو غائب کر دیا جائے۔ 31 انسانوں کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دیں تو وہ نہ سنوائی کرے۔ اس کے بعد آج جب یہاں پر پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس لے کر آؤ جنہیں اغوا کیا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس وقت وہ کس حال میں ہیں، وہ لاپتہ ہیں، اغوا کیے گئے ہیں، مارا پیٹا گیا ہے، جبراً ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں یا خریدا گیا ہے۔ ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے، غیر جمہوری کام ہوا ہے، غیر آئینی کام ہوا ہے۔ اس اغوا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اغوا مینڈیٹ، یہ قبضہ مینڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سے زیادہ جمہوریت کی کوئی بات نہیں سمجھتا۔ ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہوتی ہے، ہمارے ہاں خاندان کی جمہوریت نہیں ہے، وراثت اور وصیت پہ ہماری پارٹی نہیں چلتی۔ نیچلی سطح سے لے کر مرکزی امیر تک انتخاب ہوتا ہے، استصواب ہوتا ہے، شوراؤں کے انتخاب ہوتے ہیں، ایگزیکٹو باڈیز منتخب ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو جمہوریت کے نام لینے والے چیمپئن ہیں، ان کے ہاں کون سا انتخاب ہوتا ہے؟ تو یہ جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں، ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے مسلط کی جائے۔ اس لیے ہم اس جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے جو قبضہ مینڈیٹ ہے۔ جینوئن مینڈیٹ سامنے آئے گا، اور میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے، اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، میں جانا تو الیکشن کمیشن میں ہی ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ یہ قانونی تقاضا ہے، اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کے پاس کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ وہ اس بنیادی جمہوری حق کو پامال کر کے کوئی نتیجہ ظاہر کریں گے۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، کراچی کے عوام کامیاب ہوں گے۔ ہم گیو اپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، پرامن مزاحمت کریں گے، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس شہر میں تعمیر و ترقی کا جو خواب لوگوں نے دیکھا تھا ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ آج کے جو نتائج آئے ہیں اس میں خاصے پی ٹی آئی کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جو نہیں آئے اس پہ تو آپ نے خود ہی بات کر دی، کیا اس کے بعد بھی
आपका पीटीआई से इसी तरह का इत्तेहाद रहेगा या आगे चल के क्योंकि पीटीआई इस वक्त 9 मई के बाद मुख्तलिफ सूरताल पर है? देखिए, अभी इसका सवाल है नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है। इस वक्त तो बात यह है कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर मेयर का इंतखाब लड़ा, कानूनी आईनी जमहूरी तरीके से। उसके नंबर 192 थे, उसको जीतना चाहिए था। पीटीआई के 31 लोग आज अगर ऐवान में नहीं पहुंचे तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी होगा जो ये बताएगा कि जो 3-3 4-4 मुहिम चलाकर बिलाखिर इंतखाब लड़े और आवाम के वोट से मुंतखब हो और उसके बाद वो उस दिन उस अहम तरीन मौके पर ना आए कि जब मेयर का इंतखाब हो रहा हो। कोई इसका तस्वुर भी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद से पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखा दिया। इसलिए सरे दस्त तो मसला ये है कि 31 लोग जो गायब किए गए हैं उसके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, जरूरत में तो आपके मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के मुताबिक रोजाना खबरें चली हैं। आपने लाहेमल तो बता दिया कि इस पर आप अमल पैरा किस तरह होंगे? आप इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं उनका है, हम कोर्ट भी आप चले गए। वो मैं बता चुका हूँ, सब मैंने प्रोसेस आपको बताया। जी, जो कराची के शहरी हैं वो एक उम्मीद ये भी लेके बैठे हैं, पीपल्स पार्टी का मेयर आया है तो फेडरल में वो है, सूबाई हुकूमत में वो है, कराची की बल्दियात में भी वो हो जाएंगे तो कराची के मसाइल 23 हल होंगे। शायद 15 सालों से जो जामा ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हुआ, जो पानी का मसला हल हो जाए। देखिए, अगर कराची के लोगों को इनसे कोई उम्मीद होती तो इनको वोट डालते हैं ना। इन्होंने तो मैंडेट कब्जे से लिया है ना, वोट से तो नहीं लिया। अगर कराची के लोगों को ये तो यही बात कह रहे थे पूरी कैंपेन में कि हमारा मेयर बनेगा तो हम पैसे देंगे, यानी किसी और का बनेगा तो हम पैसे नहीं देंगे। वैसे वडेरा माइंडसेट तो यही होता है ना कि हमारा होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, हमारा हक कोई नहीं है। वडेरा साईं जो है चाहेंगे तो हमारे मज़ारे को या हारी को कुछ देंगे, लगान देंगे, वरना नहीं देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई, ये इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन अगर लोगों को ये बात इनकी समझ में आ भी जाती और कराची के सारे लोग हारी बन भी जाते तो भी भाई मेरे तो वो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिए? वोट तो नहीं दिए, वो तो मुस्तरद हो गए। जब वो मुस्तरद हो गए इसका मतलब है कि कराची के लोग ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के मेयर ही तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ा सकता है। और पीपल्स पार्टी को कुछ करना होता तो जो अभी मेयर बने वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनके वजीर बल्दियात तो हैं 15 साल से, इनके पास पूरे तमाम इख्तियारात हैं। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड से इनको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है जो कराची के ही टैक्सों से निकल कर आता है। अगर ये कुछ कर सकते होते तो ये कर चुके होते ना, तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तभी तो लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला और जमात इस्लामी के हक में डाला या PTI के हक में ज्यादा डाला। 9 लाख वोट है हमारे पास। तो इसलिए ये तो फलसफा ही गलत है जिसको बुनियाद बनाकर ये कुछ चंद लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन कराची के आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप साहब ये बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन से कब रिव्यू करेंगे? आप अदालतों में भी जा रहे हैं लेकिन जो अदालत रिलीफ देती भी है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या 4 साल आप तो एहतजाज करते रहेंगे? नहीं, 4 साल का मसला ही नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्दी निमट जाएगा। आप मुझे बताएं कि ये जो ऐवान इस वक्त है, इस ऐवान में जाहिर है कि जब लोग ही मौजूद नहीं है तो ये कब तक लापता रखेंगे? ये कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। जी, एक इसके बाद जी, क्या ये आपसे कल तक राब्ते में थे? क्या इनकी तरफ से कोई आपको यकीन दहानी या कोई ऐसा सिस्टम था, या ये सिर्फ आपके जो पार्लिमानी लीडर है अली आतिफ शेख साहब के बयान पे चल रहा था कि नहीं जी ये आएंगे? नहीं, इनमें से बहुत सारे लोगों से हमारा पहले राब्ता रहा, फिर उसके बाद इनकी एक बड़ी तादाद से राब्ता 2-3 दिन पहले बिल्कुल मुनक़ता हो गया। लेकिन इनमें से 7-8 अफराद कम अज़ कम ऐसे थे कि जिनसे हमारा कल भी राब्ता हो। मुझे अफसोस ये है कि 2 ख़वातीन को भी लापता किया गया है जो नहीं आ सका। मुझे अफसोस है इस बात का, किसी भी वजह से, मुझे तो नहीं मालूम। छापे मारते रहे, हमारे माइनॉरिटी विंग के जो PTI के काउंसिलर थे उनके घर पे गए और घूमते फिरे पूरे शहर में इनको अगवा करने के लिए। तो ये कौन सा तरीका है? मीडिया से टॉक की है, उन्होंने कहा है कि वो जमात इस्लामी और PTI के पास जाएंगे और उनको जाकर ये पेशकश करेंगे कि आए अब मिलकर जो है कराची की तरक्की के लिए काम करें। आप क्या जवाब दें? देखें, असल में मेरे भाई ये बातें करना तो बहुत अच्छा होता है, अगर उनके अंदर कराची की डेवलपमेंट उनके पेश नज़र होती और मैंडेट का एहतराम होता तो वो कराची के अवाम का मैंडेट का एहतराम करते, यूसियाँ ना कब्जा करते, हल्का बंदियाँ इस तरह की ना करते, वो ये ना करते कि फिर रिकाउंटिंग में छीनते चले जाते, फिर वो ये ना करते कि 31 लोगों को लापता करते। आप पूरे घर के ऊपर आकर काबिज हो जाएं और फिर कहें कि आए हम अच्छे बच्चे बनकर बैठकर बात करें। ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। आप जमहूरी रवैये का मुजाहरा ना करें और फिर उसके बाद जो है एक नतीजा हासिल करने के बाद ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चाहें कि हम थोड़े आपके पास आ गए हैं साहब डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट आपके पेश नज़र होती तो जमात इस्लामी का मेयर बनने देते आप। की गुंजाइश नहीं है कि अगर वो
पीटीआई के वो महीना बाद आए, 2 महीने बाद आए, तो कौंसल में आपने इत्तेमाद नहीं किया जा सकता? ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और हम इन ऑप्शन को पुरकार लाएंगे। देखिए एक बात समझ लें, अगर कोई ये समझता है कि जी कि आपने दावा किया कि आपके 192 हैं, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि 173 हैं, तो ये कैसे चलेगा ऐवान? नहीं, ये ऐवान तो 92 का मेयर बन जाता, हम चला के दिखाते हैं आपको। मेजोरिटी का मेयर बनेगा ना, तो मेयर तो मेजोरिटी का बनना चाहिए था ना, गायब करके मेजोरिटी थोड़ी लानी चाहिए थी। अब मैं तो फिर पहाड़ा पढ़ूं 70 से, वो तो मैं नहीं पढ़ रहा इस वक्त। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे कि आप भी ये सवाल कर रहे थे कि हम सारे ऑप्शन पुरकार लाएंगे हालात को देखते हुए। और एक बात मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम कराची की डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, ये बात आप समझ लें। हमारे पास जो यूसीज हैं, आप देखिएगा हम कैसा काम करते हैं। हमारे पास जो टाउन हमने 9 बिलाखिर जीत लिए, 4 पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन 9 हमने जीत लिए, 3 पीटीआई के हैं। हम इंशाल्लाह बामी ताउन से इन 12 टाउन्स में काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ये मत समझें कि और हम जब तक ये मतलूबा नतीजा जो कराची के अवाम के मैंडेट की बहाली नहीं करेंगे, तब तक हम वो काम करेंगे कि इनको भी भागने नहीं देंगे और इनसे भी अपने सारे काम करवाएंगे, इसलिए कि इनके कब्जे में कुछ नहीं है, ये हमारे पैसे हैं, हम पे लगने चाहिए। और वो जो काम ये ताकत में रहकर 15 साल से नहीं कर सके, हम इंशाअल्लाह ताला इस हालत में भी इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। साहब ये बताएं, बुरा न मनाएंगे, आप हार गए क्या? साईं, मुझे हारता वो है जिसके नंबर कम होते हैं, मेरे नंबर पूरे हैं, मैं जीत गया हूँ, जमात इस्लामी जीत गई है। हारा वो है जिसने जमहूरियत पे शबखून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत पे शबखून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत को कत्ल किया, वो हारा जिसने इंसानों का अगवा किया, जिसने बंदों को उठाया। तो वो जो कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, उठवाया नहीं करते। सुबह आपने इतराज किया था, जो उस पर क्या जवाब दिया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीबुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हम पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं, ये हल्का बंदियाँ जाली हल्का बंदियाँ हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई के मैंडेट पर डाका मारा गया, हमारी जीती हुई सीटों पर आरोज़ के ज़रिए नताइज को बदला गया है। हाफिज़ ज़हीबुर रहमान ने कहा कि इस फ़लसफ़े पर चंद लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकते हैं। हाफिज़ ज़हीबुर रहमान का मज़ीद कहना था कि हम पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर कराची के नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये हल्का बंदियाँ जो की गई, ये जाली हल्का बंदियाँ हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस इलेक्शन पर डाका मारा।